جو اپنی ذات سے نکل کر صرف اور صرف آپ لوگوں کا سوچنا چاہتا ہے. اب عزم کرتے ہیں کہ خوشیوں کا سال شروع ہوگا. ایک طاقت اور ایک ساتھ ہو کے دیکھتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج 31 دسمبر ہے, سال کا آخری دن ہے, ایک سخت آزمائش والے سال کو رخصت کرنے کی گھڑی ہے, اور ایک امید بھرے, امید افزا نئے عزم, نئے حوصلے کے ساتھ 2023 کا خیر مقدم کرنے کا وقت ہے. آپ کو نئے سال کی مبارکباد ہو. جی السلام علیکم ناظرین. اس وقت ہم موجود ہیں پی آئی بی کالونی فاروق ستار صاحب جو کہ بحالی کمیٹی کے سربراہ ہیں MQM پاکستان, اور اس وقت جو ہے گورنر سندھ جو ہے کامران ٹسوری صاحب جو ہے تشریف لے آئے ہیں. اب آگے وہ پریس کانفرنس کریں گے. نوجوان جو کہ اس وقت کراچی کے جو انتظار میں ہیں اس پریس کانفرنس کے, جو خواتین ہماری بہنیں جو بھی اس وقت بے قرار ہیں کہ کامران ٹسوری صاحب جو ہے کون سا میسیج آج دینا چاہیں گے آج کے حوالے سے. جی ناظرین, عمران عزیز کین 24 HD نیوز, کیمرہ مین سکندر علی کے ساتھ کراچی. جی ناظرین, آج کی اس خوبصورت کانفرنس کے حوالے سے ہمارے ساتھ ہماری ایک محترمہ جو کہ ہماری والدہ محترمہ کا جگہ ہیں. آج ہم ان سے جانیں گے کہ کس طرح سے آج یہ پروگرام منعقد کیا گیا اور اس کیا مقاصد ہیں. السلام علیکم. فاروق بھائی کا ساتھ کچھ نہیں کیا, تو اگر آپ وہ پروف کر کے دکھا دیں گے تو انشاءاللہ ہو جائے گا. ہماری پوری دعائیں ان کے ساتھ. نیا سال مبارک ہو. اللہ کرے کہ اردو اسپیکنگ لوگ پھر سے آج کے حوالے سے بتائیں گی. جس طرح سے یہاں پر ایک پروگرام منعقد کیا گیا ہے, کامران ٹسوری صاحب گورنر سندھ یہاں پر موجود ہیں, اور بحالی کمیٹی کے جو سربراہ ہیں ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کی قیادت میں یہ سب ہو رہا ہے, تو کیا کہنا چاہیں گے آج کے حوالے سے؟ السلام علیکم. آج ہم بہت امیدیں لے کر آئے ہیں یہاں پہ. انشاءاللہ سب اچھا ہوگا. ہمارے گورنر سے کامران ٹسوری بھائی آئے ہوئے ہیں یہاں پہ. بہت ساری امیدیں, مہنگائی, بہت ساری چیزوں سے پریشان ہیں, چوری ڈکیتیاں, بہت سارے سسٹم خراب ہوئے ہیں. اللہ پاک سے بہتری کی امید ہے اور دعا گو ہیں کہ سارا کچھ بہت اچھا ہو, اور آگے کا جو بھی ہے بھائی فاروق بھائی جو سمجھ رہے ہیں, کر رہے ہیں, سوچ رہے ہیں, انشاءاللہ وہ اچھا ہی ہوگا اور اچھے کی طرف ہی جائیں گے انشاءاللہ. میں بھی یہی بولوں گا, صحیح کر اچھا اس کام ایک ساتھ سب لوگ ہو جائیں جمع. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آج بہت اچھا لگا ہے کیونکہ فاروق بھائی کے ساتھ قدم اٹھانے آئے ڈاکٹر کامران ٹسوری صاحب. تو میں چاہتا ہوں کہ یہ فرینڈ شپ بن جائیں اور سارے اکٹھا ہوئیں اور سارا ٹھیک ہوئے, حالات ٹھیک ہو جائیں, اور یہ چوریاں جو مہنگائی سب ٹھیک ہو جائے, اور انشاءاللہ سب لوگ ایک ساتھ ہو جائیں اور فرینڈ شپ ہو جائے. بہت اچھی بات ہے. آپ ناظرین یہاں پر دیکھا کہ ہر جو شہری اور خواتین ہماری یہاں جو موجود ہیں سب کی ایک ہی آواز ہے کہ کراچی شہر میں امن ہونا چاہیے. امن کے ساتھ ساتھ اس شہر قائد میں جس طرح سے چوری ڈکیتی اور جس طرح سے اسٹریٹ کرائم بڑھا ہوا ہے, اس پر کنٹرول ہونا چاہیے. آج کی پریس کانفرنس جو ہے کیا پیغام لے کر آئے گی؟ کامران ٹسوری صاحب اور ڈاکٹر فاروق ستار صاحب جو ہیں یہاں پر موجود ہیں, ان کی قیادت میں کیا آج میسیج ملنے والا ہے کراچی کے نوجوانوں کو؟ جی السلام علیکم ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں حیدرآباد سے آئی ہے قیادت یہ ماشاءاللہ سے ظہیر صاحب جو کہ جوائنٹ انچارج ہیں, حیدرآباد سے تشریف لائیں. آج کی پروگرام جو منعقد کیا گیا ہے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کے حوالے سے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام.
आज के हवाले से बताएंगे कि आज जिस तरह से कामरान टिसोरी साहब गवर्नर साहब भी यहाँ पर तशरीफ़ ले आए हैं, आज का क्या मंशूर होगा और क्या मतलब एक मैसेज देना चाहेंगे आज के हवाले से कराची की आवाम को, हैदराबाद की आवाम को, बल्कि जहाँ जहाँ हमारे महाजरीन जहाँ हैं और नौजवान जो नस्ल इस वक्त जिस तरह से हालात के पेश नज़र हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? देखें, जो आज यहाँ पर हम मौजूद हैं हैदराबाद से, उसमें हमारे काफ़ी सारे ज़िम्मेदारान यहाँ मौजूद हैं और इसी सिलसिले में मौजूद हैं कि जो कुछ MQM के हवाले से होने जा रहा है और बहुत अच्छी सिमत में, कारकुनान की भी यही राय है कि बहुत अच्छी सिमत में जा रहे हैं। बाकी जो चीज़ें हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का सब इंतज़ार कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस से हर चीज़ वाज़ेह होगी कि हम किस सिमत जा रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद यही है कि हम अच्छी सिमत की तरफ जा रहे हैं और MQM को मजबूत करने जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। हैदराबाद में डॉक्टर फारूक सत्तार साहब का क्या एक मतलब एक वहाँ पर ज़ोर व शोर है और क्या चाहती है वहाँ की आवाम? देखिए, शुरू से कराची और हैदराबाद एक हैदराबाद की और कराची की सिमतें अलग अलग हैं, लेकिन हैदराबाद में जो है वो फारूक सत्तार भाई के हवाले से यानी MQM के हवाले से एक मजबूत किला है और हमारे साथियों की तादाद आपको मुख्तसर ये बताएगी कि जो है हैदराबाद एक मजबूत किला है और इसीलिए हम बैठे हैं यहाँ। आप क्या कहना चाहेंगे आज के हवाले से? गमों की धूप फैली हो, ये एक अच्छा अमल है और इसकी कोशिश तो 2.5-3 साल पहले से फारूक भाई भी कर रहे थे, लेकिन क्या वजूहत थी जो उस पर अमल ना हो सका। लेकिन अब ये बेड़ा गवर्नर सिंह जनाब कामरान टिसोरी साहब ने उठाया और उसका रिजल्ट भी आया, जिसका सबूत आज का ये प्रोग्राम है और इंशाअल्लाह ताला जो भी होगा वो बहुत अच्छा होगा MQM के धड़ों के लिए भी और महाजिर कौम के लिए भी इंशाअल्लाह। जी बिल्कुल। आपका नाम? होगा अशरफ मुगल, ज्वाइंट डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज हैदराबाद। बहुत शुक्रिया। आज की तकरीब के हवाले से हमारे साथ ताबिश जिलानी साहब मौजूद हैं, वो बताएंगे डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने जिस तरह से आज ये प्रोग्राम मुनक्किद किया, जिसमें गवर्नर सिंह डॉक्टर अपना कामरान टिसोरी साहब को यहाँ पर मदऊ किया है, जानना चाहेंगे कि आज का ये क्या मंशूर है, क्या मकासद है इस तकरीब का? जी वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप भी जानते हैं कि ये MQM 22 अगस्त के बाद जो एक डिस्पर्स हुई और मुख्तलिफ धड़े बन गए, उसके बाद बहुत ज़रूरी था कराची के हालात को देखते हुए कि इसको दोबारा से जोड़ा जाए और इसके लिए मैं समझता हूँ मोर देन 2.5 ईयर्स फारूक भाई कोशिशें कर रहे थे, लेकिन वो एक वक्त मुकर्रर होता है हर काम का। कामरान टिसोरी साहब भाई जो हैं और जब गवर्नर बने तो उन्होंने इसको तेज़ किया और एक मिशन लेके चले और बहुत कामयाब हुए वो इसमें, क्योंकि मैं समझता हूँ कि PSP और हमारे बहादुराबाद कुछ उनकी रिजर्वेशंस थी जो आई थिंक ख़त्म हो चुकी है और ये तमाम बातें जो हैं कराची के अवाम के लिए बहुत बेहतर हैं। यूनाइट होकर जब इलेक्शन होगा, कैंडिडेट्स आएंगे तो वो काम भी करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। शहर माँ की तरह सबको महफूज कर लेता है और उफ नहीं करता। बेशक। तो ये सवाल है कि जब मेरा शहर सबकी खिदमत करता है, तो आज जब ये शहर टूट रहा है, हर हवाले से बिखर रहा है, तो हम क्यों बिखरे हुए हैं और हम अपने हाथ और अपने सामने रेत की तरह अपने हाथ से इस शहर को निकलता देख रहे हैं? कब ख्याल आएगा और किसको आएगा? तो आए अहद करते हैं आज सब मिलके, नया साल शुरू होने वाला है। चलें, परेशानियों का साल खत्म हुआ, अब अज़्म करते हैं कि खुशियों का साल शुरू होगा। तो हो गया है, DMC सेंट्रल के एडमिनिस्ट्रेटर का ऑर्डर भी नहीं हो रहा है। देना नहीं चाहते हैं क्योंकि उनको पता है कि ये कमज़ोर हो गए हैं, ये कुछ भी नहीं है, इनकी कोई हकीकत नहीं है, और अपने अंदर वही अज़्म और वही हौसला और वही जोश पैदा कर लें कि ये शहर हमारा है, ये सूबा हमारा है, ये पाकिस्तान हमारा है। तो जो मैं बता रहा था कि एक कोशिश जिसमें मेरी फारूक भाई से बात हुई, फारूक भाई के ख्यालात, मुस्तफ़ा भाई के ख्यालात, खालिद मकबूल भाई के ख्यालात, तो ठीक है,
किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, एक ताकत और एक साथ होके देखते हैं और फिर देखते हैं कि कौन रोक सकता है। और फिर कहा है ना किसी ने कि रोक सको तो रोक लो। एक कोशिश है, मेरी दरख्वास्त इन सब भाइयों से, क्योंकि देखें बहैसियत गवर्नर सिंध मैं सियासी कोशिश नहीं कर सकता, इखलाकी कोशिश कर रहा हूँ। इन सब से दरख्वास्त कर सकता हूँ, मजबूर तो किसी को नहीं कर सकता। अगर इतना कुछ हाथ में निकल जाने के बाद भी अगर किसी के पास अना है, ज़िद है, कमी है और अपने आप को और एक दूसरे को ठीक करने की ही जहन में कोशिश है, तो मैं कहता हूँ फिर उन सबको आप रिजेक्ट कर दें और चुन लें उसको जो अपनी ज़ात से निकल कर सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का सोचना चाहता है, आप लोगों के लिए बात करना चाहता है। आज क्या हो रहा है, बिजली पानी गैस तो छोड़ दें, एक और बात इस शहर में हो गई कि हर दूसरे दिन एक माँ की कोख उजड़ रही है। एक मोबाइल के लिए एक माँ का जवान साला बेटा, एनएडी का स्टूडेंट, लॉ का स्टूडेंट, जवान बच्चा हर दूसरे दिन, कभी कहते हैं अफगानी आ गए, कभी कहते हैं कोई और आ गया है। तो पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक शहर कराची है जहां माल भी ले लो और जान भी ले लो और फिर भी हम आवाज़ ना उठाएं। मैंने आवाज़ उठाई, मैंने कहा तमाम एसएचओज़ अपनी कमर कस लें, अगर ये वाक़या हुआ तो मैं आऊँगा, और मैं गया भी। लेकिन आपसे बता रहा हूँ, अच्छा नहीं समझा गया इस बात को। कहा गया नहीं, आपका इख्तियार नहीं है। मैंने कहा मैं बेइख्तियार नहीं हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, अगर हम अज़्म कर लें, इरादा कर लें और एक दूसरे के दस्ते गिरेबान ना हो, एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी बंद कर दें, तो कोई देर नहीं, कोई वजह नहीं कि फिर सब चल कर आएंगे। ये सूबा हमारा है, लेकिन ये शहर भी हमारा है। मैं इस शहर का बेटा हूं, मुझे फ़ख्र है कि मैं इस शहर का बेटा हूं और मुझे ये फ़ख्र है कि मैं उर्दू स्पीकिंग हूं और मुझे ये भी फ़ख्र है कि मैं महाजिर हूं। मैं महाजिर हूं, लेकिन मैं एक सच्चा पाकिस्तानी भी हूं। नेशनलिज्म है मेरे पास, इसीलिए मुझे अपनी कौमियत की भी फिक्र है। मैं एक सच्चा पाकिस्तानी और एक सच्चा महाजिर सिर्फ अपने इन तमाम भाइयों से और इस शहर के लोगों से सिर्फ एक दरख्वास्त करूं कि खुदा के वास्ते अपनी अहमियत को जानिए, अपनी अहमियत को जानिए। आपका बड़ा बुरा हाल कर दिया है, गरीब कर दिया आपको, मजलूम बना दिया आपको, बेचारा बना दिया है। तो इस बेचारगी को साइड में रख दें, मजबूरी को साइड में रख दें, क्योंकि कराची के लोग हैं, बहुत गैरतमंद हैं। गैरत नहीं बेची आपने। चलो हमें बिजली पानी गैस ना दो, लेकिन इज्जत तो दो। ये तीन चीजों के बगैर तो गुजारा कर लोगे, क्या इज्जत के बगैर करोगे? नहीं। तो बस इज्जत की खातिर ही अज़्म कर लो, इज्जत की खातिर ही खड़े हो जाओ, अपने हक के लिए खड़े हो जाओ, एक हो जाओ। ये एक हो जाओ के लफ्ज में बड़ी ताकत है। अपने ही लोगों को सोशल मीडिया पे गालियां दे रहे हो, किसी और दुश्मन की तो जरूरत ही नहीं। रोजाना कहते हैं इसने इसको गाली दी, इसने उसको गाली दी, आपस में ही दस्ते गिरेबां होके और सो जाते हैं। और जो बैठे हैं वो हंसते हैं हम पर, हंस रहे हैं लोग आप पर,
अपना मजाक मत उड़ाओ और मत उड़वाओ, खुदा का वास्ता है। एक दूसरे को इज्जत दो, एक दूसरे का बाजू बन जाओ। बाकी आपकी मर्जी है। ऐसे ही चल रहा है, 75 साल के बाद भी पानी बिजली नहीं है और 10-20 साल गुजर जाएंगे। लेकिन अगर कुछ बनना है और इस शहर पर अपनी माँओं, बहनों और बेटियों की हिफाजत करनी है तो समझदार बन जाओ। आगे आने वाला वक्त अच्छा नहीं है, आगे आने वाला वक्त अच्छा नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको पहले पाकिस्तान और पाकिस्तानी बनने की हिम्मत और ताकत दे और फिर अपने इस शहर की हिफाजत करने की और इसके लोगों की हिफाजत करने की ताकत दे। मैं एक बार फिर डॉक्टर फारूक सत्तार भाई का, उनके तमाम रुफ़का का, उनकी पूरी बहाली कमेटी का, मीडिया का, अपनी सब बाजियों का, माँओं बहनों का, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी व नासिर हो और हम सब एक बार ज़ोर से कहें कि पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं ये समझता हूँ कि आज 31 दिसंबर है, साल का आखिरी दिन है, एक सख्त आजमाइश वाले साल को रुखसत करने की घड़ी है और एक उम्मीद भरे, उम्मीद अफजा, नए अज़्म, नए हौसले के साथ 2023 का खैर मकदम करने का वक्त है। आपको नए साल की मुबारकबाद हो। नया साल है, नया सफ़र है, नया अज़्म है, नया हौसला, नया बलबला है। मुझे यकीन है कि 2018 में और शायद उससे थोड़ा पहले 2016 में MQM पाकिस्तान की तकसीम का एक सिलसिला शुरू हुआ था और 2018 में मुझे भी अलहदा होना पड़ा था। मैंने कोई नई सियासी जमात नहीं बनाई। मैं अपने साथियों को यही कहता था कि मैं MQM के तमाम जो हिस्से हैं, बखरे हैं, धड़े या जो भी कहें, मैं समझता हूं कि ये सब एक ही फैक्ट्री का प्रोडक्ट है, ये सब एक ही नज़रिए के हामिल हैं, ये एक ही तहरीक से जुड़े हुए जो कि तहरीक MQM है। हम सब तहरीक MQM के कारकुनान और साथी हैं। मैं समझता हूं कि 2.5 साल से मैं ये कोशिश कर रहा था अपने साथियों के साथ कि जो MQM पाकिस्तान के साथी हैं, PSP के साथी हैं, कि हमारा इंतशार और तक़सीम ये सिर्फ हम इसलिए यकजा होने, मुत्तहिद होने नहीं जा रहे कि हमें अगले इंतखाबात की हम तैयारी कर रहे हैं। ये मैं क्लियर वाज़ेह कर दूं, हमारा मकसद इससे बहुत बड़ा है। हम तमाम मजलूमों की, बिलखुसूस पाकिस्तान बनाने वालों की मौजूदा नस्ल, महाजिरों का जो एहसास यतीमी, एहसास महरूमी, एहसास बेगानगी, एहसास बेबसी और एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़ है, क्योंकि अब उन्हें इस कैफियत से ना निकाला गया, मायूसी से निकालकर उनको उम्मीद के सफ़र पर रवाना ना किया गया, तो अब यकीन माने कि किसी भी वक्त ख़ास तौर पे बिलखुसूस शहर कराची में मुल्क दुश्मन कुव्वतें, फिफ्थ कॉलमिस्ट, इंतहा पसंद, दहशतगर्द, तखरीबकार लोगों की इस मायूसी और जहनी कैफियत से फ़ायदा उठाकर इस मुल्क को एक बड़ा नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाएंगे। कराची कमज़ोर और गैर मुस्तहकम तो पाकिस्तान भी कमज़ोर और गैर मुस्तहकम, क्योंकि कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है, कराची चलता है तो पाकिस्तान पलता है। तमाम ज़बान बोलने वाले पाकिस्तानी, किसी इलाके के पाकिस्तानी जो कराची, हैदराबाद और सक्खर में रहते हैं,
चाहे किसी मसलक किसी मजहब के, उन सब को जोड़ने की बात हो रही है। ओन कराची, ओन कराची, सेव कराची, मेक कराची, सबको मुश्तरका तौर पर सियासी वाबस्तगी, हर वाबस्तगी से बालातर होकर सबको एक जगह पर जमा करना। और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कामरान टुसरी भाई को, इनकी कोशिशों को कि इन्होंने शबाना रोज़ 2.5 साल से जो मेरा एक ख्वाब था और मेरी कोशिशें थी, इन्होंने आकर उसमें ऐसा 777 का और जो एयरबस 380 का ऐसा इंजन लगाया कि जो साला 2.5 साल के अंदर जो मकसद मेरा और मिशन था, मैं उसमें कामयाब किसी वजह से नहीं हो सका। किसी वजह से, कोई ना कोई वजह है कि मैं नहीं हो सका। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह तमाम फरीक़ैन जो इस सारी यकजहती के हवाले से, अल्हम्दुलिल्लाह आज 31 दिसंबर एक ऑडिट है हमारा अपना, हमें एहतसाब करना है। तो आए अपने तल्ख माजी को, अपनी इस आजमाइश और चैलेंज से भरे इस साल को रुखसत करें और नए साल को सीने से लगाएं इस खुशखबरी के साथ कि बानियान पाकिस्तान की उनकी मौजूदा नस्ल एक रीब्रांडेड, रिफॉर्म, रीवैम्प और रीऑर्गेनाइज एक नई एमकेएम, वही जो मिडिल क्लास पढ़े लिखे नौजवानों का अमल था। जामिया अलीगढ़ जिसने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नौजवानों तालिब इल्मों ने खड़े होकर पाकिस्तान बनाया, नामुमकिन को मुमकिन बनाया। अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान को बचाएंगे भी और बनाएंगे भी इंशाअल्लाह ताला, ये हमारा मकसद है। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं फ़ारूक सत्तार भाई, डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब, जो कि आज हमें बताएंगे इख्तिताम के बाद जो बात हम पूछना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, जिस तरह समाजी हलकों में जिस तरह से आपके तबसरा किया जाता है, उस हवाले से मैं बात करूंगा कि लोगों की चाहत है कि आप आएँ, जिस तरह से आपका मिशन है आज माशाल्लाह, जिस तरह से आपने इक़दाम लिए, कामरान टिसोरी भाई भी आए, तो क्या जो बातें की गई हैं, मुस्तफ़ा कमाल भाई, खालिद मकबूल सदीक़ी भाई जो हैं, क्या मुत्तफिक हैं इस पर कि हम सब एक हो जाएं? देखिए, अगर जहाज़ को उड़ाना हो तो उसकी सबसे पहले ज़रूरत है कि जहाज़ भी आपके पास बना हुआ हो, यानी एक नैरेटिव, रोड मैप और विज़न। मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि हमें करना क्या है यकजा होने के बाद, और जो यकजा होने का अमल है वो एयरपोर्ट की तामीर है। अभी जहाज़ और विज़न और वो तो उसमें मुझे सबका इत्तफाक नज़र आता है, माँ सिवाय 1-2 नुकात हैं, ठीक है ना, कि हम 10 साल की नई क़यादत कितनी जल्द आवाम के सामने पेश करेंगे, ये एक है। और मेरा एजेंडा ये है कि हमें 50% तंजीमी ढांचे में और 50% सियासी नुमाइंदगी में 35 साल से कम उम्र के नौजवानों को देनी चाहिए। ये जहाज़ है, रोड मैप है। और एयरपोर्ट क्या, हमारी यकजहती, हमारा इत्तेहाद। तो वो एयरपोर्ट अब बन रहा है, अब ये एयरपोर्ट बनेगा, जहाज़ आ जाएगा तो जहाज़ उड़ेगा भी। मतलब जो एक वक्त में कामरान टिसोरी भाई ने गवर्नर बनने से पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर अल्ताफ़ भाई आ जाते हैं तो मुझ समेत हम सब अल्ताफ़ भाई के पास चले जाएं। इसका जवाब वही देंगे। इसका मैं उनका ब्रीफ नहीं होल्ड करता, मैं उनका तर्जुमान नहीं हूँ, ये वही जवाब देंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? ठीक हैं, बल्कि कुछ ज़्यादा ही ठीक है आज के प्रोग्राम के बाद। माशाल्लाह से नए साल की एक आगाज़ का सिलसिला है, और फिर आज के ही दिन आपने ये जिस तरह से प्रोग्राम मुनक्किद किया, और कामरान टिसोरी साहब गवर्नर सिंध जो है यहाँ मौजूद थे, तमाम बातें हुई, इत्तिफाक की बात हुई, एक यकजहती की बात हुई, वो की गई। तो आज बताएंगी कि आप क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? हाँ, आज के मौके से मैं ये कहना चाहूँगी कि पहले तो अस्सलाम वालेकुम आप सबको, नया साल आप सबको बहुत मुबारक हो। और दूसरी बात ये कि फ़ारूक की भी बहुत स्ट्रगल है और कामरान की बहुत स्ट्रगल है। कामरान जो है ना, सच एन ऑनेस्ट पर्सन ना, तो उन्होंने पहले से ही सोचा हुआ था अगर ऐसा हुआ गवर्नरशिप मिली तो फिर जाहिर है वो सबको मिलाने की बात करेंगे, क्योंकि देखिए यूनिटी में जो है ना बरकत है, सब एक हो जाएं, एक होकर काम करें। लेकिन जो इनका विजन है उस पर रह के काम करेंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे। ऐसा ना हो कि सामने से कुछ वैसे, मतलब दूसरे लोगों की मैं बात कर रही हूँ, कामरान हो गए, फारूक हो गए, खालिद मकबूल भाई गए, ये लोग तो सब पता है कि अच्छे हैं, काम करने वाले लोग हैं। सबको इनका साथ देना चाहिए, ईमानदारी के साथ, ऑनेस्टी के साथ। और
ہماری جو مہاجر عوام ہے جو اس کے لیے اس کے جو کاز انہوں نے رکھا تھا اس پہ کام کریں اور یہ نہیں سوچیں کہ کس کی کون سی پوسٹ ہے اور کیا اپنے لیے بنانا ہے. اپنے آپ کو بھول کے اس وقت سب کے لیے سوچنا ہے. کراچی بنے گا تو پاکستان بنے گا. کراچی میں بہت کام ہے, بہت برا حال ہوا ہوا ہے جو کرنے ہیں. آپ دیکھیں باہر نکلنا مشکل ہے, روڈیں ٹوٹی ہوئی ہیں, پانی کا پرابلم, اب گیس کی بھی لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی ہے. تو میرے خیال سے ابھی کامران پہ ان لوگوں پہ بہت لوڈ ہے کام کا اب, لیکن یہ کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ انشاءاللہ سارے کام ہوں گے اور ہم سب ان کا ساتھ دیں گے. یہ بہت اچھا ہو گیا. تھینک یو. My name is Afshan Farooq Sattar and I am a designer since 1994. I am working as a fashion designer. Now I am working with EFU since 4 years now. Actually میں نے کچھ پلانس لیے تھے, مجھے اچھے لگے, مجھے اویئرنیس نہیں تھی, اویئرنیس ہوئی. اس کے بعد انہوں نے جاب آفر کی فاروق کی پرمیشن سے. ابھی میں EFU کی امپلائی بھی ہوں اور ایز اے سیلس پرسن کام کر رہی ہوں اور I keep myself busy. I love it. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ آپ کا. ہمارے ساتھ موجود تھیں فاروق ستار بھائی کے اہلیہ. انہوں نے تمام ساری باتیں بتائیں, اپنا انٹروڈکشن بھی کرایا اور بہت اچھا لگا یہاں آ کر. یہاں کے تمام جو مناظر تھے آپ کو ہم نے وہ بھی دکھائے. میں اجازت چاہوں گا. آپ کا میزبان عمران عزیز, کیمرہ مین سکندر علی کے ساتھ, Can 24 HD نیوز کراچی.